नबील अहमद, दानियाल हुमायूं मिर्ज, उमर अब्दुल्ला। नबील अहमद 615222, दानियाल हुमायूं मिर्जा 64169, उमर अब्दुल्ला 63292। Okay, so we don't have such type of formula. First we take it up. So we may use u upon v. That will be difficult for you. U upon v is a difficult formula, that is u dash v minus v dash u upon v square. So it is better if we convert into gt. We simplify this one. Gt is equal to t raised to power minus 2. 1 over t square, 1 minus 1 over t square will become t raised to power minus 2. Now we'll find the derivative g dash t will be equal to, power will come over there, minus 2, and t raised to power minus 2 minus 1. We will subtract 1 power. Even it is positive or even it is in fraction, whatever be the power, that will be shifted over there. It is positive power, it is negative power, or it is fraction power, it is under root power, whatever it is, we have to subtract. That power is shifted over there. Whatever be the power, a real number, it must be real. In real means it may be positive whole number, it may be negative whole number, it may be fraction, or it may be under root, positive under root. So, and we will subtract minus 1. Muhammad Salman Khan 64094. Okay. Now we are taking the derivative, it will become minus 2 t raised to power minus 3, or we may write minus 2 upon t raised to power 3. This is g dash t. This is g dash t. That means the first derivative of gt. Muhammad Hashir 64093. And we have to find the values at g dash minus 1, g dash 2, g dash under root 2. These three values are to be determined. So first of all, we'll find g dash minus 1, g dash minus 1. This is the first part. So t is replaced by minus 1, minus 2 upon minus 1 whole cube. It will become minus 2, and minus 1 whole cube will be minus 1. Minus 1 whole cube means minus 1 into minus 1 into minus 1. That will become minus 1. Minus 1 whole cube means minus 1 into minus 1 into minus 1. It is minus 1 into minus 1 plus 1, plus 1 into minus 1 will be minus 1. So minus is cancelled by minus, the answer is 2. 2 is the answer for g dash minus 1. Now g dash 2.
The second one, so 2 t is replaced by 2, t is replaced by 2, so minus 2 upon 2 raised to power 3. This is 2. It will become minus 2 upon 2 into 2 into 2 will be 8. 1, 4. The answer is minus 1 upon 4. The answer is minus 1 upon 4. Minus 2 upon t cube. So that t is replaced by 2. So 2 raised to power 3. So minus 2 upon 2 raised to power 3 will be 8. So 2 1s are 2, 2 4s are 8. So minus 1 upon 4. The last third one, g dash under root 3. So minus 2 upon under root 3 cube is equal to minus 2 upon under root 3 square will be 3. Under root 3 cube means under root 3 into under root 3 into under root 3. Under root 3 into under root 3 will be under root 3 square will be 3, and that under root 3 will remain as it is. So under root 3 cube will become 3 under root 3. So this is 3 under root 3 is the answer. This is nothing cancelled. Nothing is being cancelled. So answer is minus 2 upon 3 under root 3. This is g dash under root 3. The answer of g dash under root 3. Question number 4. Question number 4. Six, 4, 2, 9, 0. Question number 4. K of z, K is a function of z, equal to 1 minus z upon 2z. And find the value of k dash minus 1, k dash 1, k dash under root 2. First of all, we'll find k dash z, then we can substitute because this is the derivative. K dash means the derivative. So here we can use the formula of u upon v. We will use the formula of u upon v, or we may separate them. We may separate them. I will do both the methods. First I am doing separate. First I am simplifying this one. 1 upon 2z minus z upon 2z. I separated. I broken the fractions, partial fractions.
So this is z is cancelled by z. It will become 1 upon 2. Z is shifted upside, z is to power minus 1. And there is no z, only 1 upon 2. This is just I simplified it. I broken into two fractions, partial fractions, the two partial fractions, two fractions. Now I will take the derivatives, k dash z. 1 over 2 is constant, that will remain as it is, and derivative of z is to power minus 1, first power will be shifted over there, minus 1. Then z is to power minus 1, one power will be lesser. एक पावर इसमें से कम करते हैं. ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव. और ये कांस्टेंट है, देयर इज नो z, इट्स डेरिवेटिव विल बी 0. So the answer is, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, सो माइनस 1 अपॉन 2, 1 over 2 into minus 1, sorry, 1 over 2 into minus 1 will be minus 1 over 2, and z is to power minus 2. चाहे तो हम इसको नीचे भी ला सकते हैं, it may become minus 1 over 2, z is to power minus 2 will become z square. ये आ जाएगा इसका आंसर, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 over 2 z स्क्वायर. ये तो मैंने इसको अलग अलग करके किया, दो फ्रैक्शंस बना के किया. अब मैं इसमें को u अपॉन v का फार्मूले से इसको डेरिवेटिव निकालता हूँ. u अपॉन v का फार्मूला, u अपॉन v का फार्मूला क्या है वो मैं पहले लिख देता हूँ, यहां लिखते. डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, होल डेरिवेटिव इसका क्या होगा, u का डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू v माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इनटू u अपॉन v स्क्वायर. ये फार्मूला मैंने आपको भेज दिया था, लिखवा दिया था. ये फार्मूला u अपॉन v का डेरिवेटिव इज u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर. इस फार्मूले से हम इसको करते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं. u हमारे पास क्या, ऊपर वाले को u सपोज करते हैं, 1 माइनस z को हम u सपोज करेंगे. u इज इक्वल टू 1 माइनस z. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u डैश क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस z का डेरिवेटिव 1. जैसे मैंने पहले बताया था, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो द आंसर इज माइनस 1. u का डेरिवेटिव माइनस 1, इसको हमने v लिया था, नीचे वाला v होता है 2z इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू 2z. v का डेरिवेटिव v डैश, 2z का 2 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, और z का डेरिवेटिव 1 होता है. आंसर इज इक्वल टू 2. आंसर हमारे पास इसका 2 आ गया, u डैश v डैश. अब फार्मूले में पुट कर देंगे, k डैश z क्या होगा, पहले u डैश हमारे पास क्या है माइनस 1, फिर v इंटू v क्या है हमारे पास 2z, फिर माइनस का साइन, v डैश हमारे पास क्या है 2, v डैश हमारे पास क्या था 2 इंटू u क्या है 1 माइनस z इंटू 1 माइनस z. तो u डैश माइनस 1 था वो लिख लिया, फिर इंटू v
v था हमारे पास 2z, वो लिख लिया, माइनस v डैश, v डैश हमारे पास क्या था 2 लिख लिया, इनटू u था 1 माइनस z अपॉन v स्क्वायर, v क्या था हमारे पास 2z का स्क्वायर होल स्क्वायर। अजीम फिलहाल 63654, ईमान आयशा, ओके, सिंप्लीफाई दिस वन, -1 into 2z minus 2z, -2 into 1 will be -2, -2 into minus z will be plus 2z, -2 into minus z will be plus 2z upon 2 square 4, z square will be z2. Simplify, minus 2z is cancelled, 2z, it will become -2 upon 4z square, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so the answer is -1 upon 2z square. वही आंसर आ गया, ये जो आया था -1 अपॉन 2z स्क्वायर, ये तो फार्मूला था। यही आंसर आ गया -1 अपॉन 2z स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम, इसमें या इसमें एक ही चीज है दोनों का, ये हमने फार्मूला यूज किया u अपॉन v वाला, तो ये आंसर आ गया, और उससे डायरेक्ट किया था हमने, फ्रैक्शन बना के किया था, तो ये आंसर आ गया था। जी कहिए। सर हमें तो डायरेक्ट नहीं करना, फॉर्मूला रख के ही करना है ना? जरूरी नहीं है, आपको जिस तरह आसानी हो बेटा उस तरह करना है ना। ठीक है सर। जो आपको आसान लग रहा है, जो मेथड, उस मेथड से कर लें। अगर बगैर फार्मूले के डायरेक्ट आसान हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर लें। जैसे पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, वो कौन सा था क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था, x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने उसमें चेन रूल नहीं लगाया, उसको मैंने डायरेक्ट खोल के कर लिया, क्योंकि वो डायरेक्ट खोलने से ज्यादा आसान था, वरना मैं चेन रूल लगा के भी कर सकता था। उसमें जो आखिरी फार्मूला मैंने लिखवाया था चेन रूल का, ax प्लस बी होल स्क्वायर वाला, होल पावर n वाला, वो फार्मूला लगा के भी कर सकता था। लेकिन चूंकि अगर पावर बड़ी होती तो वो तो मुझे फार्मूला नहीं आते ना, फिर तो वो उसमें वो बायनोमियल थ्योरम लगता, तो लंबा हो जाता, वो उसे खोल के करता, तो उसमें फिर डायरेक्ट हम वो फार्मूला अप्लाई कर देते, ax प्लस बी होल रेस्ट टू पावर n वाला, जो आखिरी फार्मूला मैंने बताया था, वो अप्लाई कर देते। लेकिन पावर 2 था तो खोल के आसान हो गया, ओपन करके। ओके सर, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है इसमें टू फाइंड द आंसर। पहले ये करना है -1, फर्स्ट पार्ट kz -1, तो z की जगह -1 पुट कर देंगे, -1 अपॉन 2 इंटू -1 स्क्वायर, इट विल बिकम -1 अपॉन -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 इंटू 2 विल बी 2। दिस इज द आंसर। सेकंड वन k डैश 1, तो z की जगह 1 पुट कर देंगे, -1 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 1 2, इसका भी वही आंसर आ गया। थर्ड वन अब यहां कर देते हैं, k डैश √2, yes √2, so -1 over 2, -1 over 2
इंटू अंडर रूट टू स्क्वायर, जेड की जगह अंडर रूट टू स्क्वायर हम पुट कर देंगे। हाशेर कुछ पूछना है बेटा? हाशेर कुछ पूछना है आपने? हाशेर, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? Okay, so under root 2 z square under root 2 square. Under root 2 square will be 2. Under root 2 square will be 2. 2 into 2 will be 4. The answer is minus 1 upon 4. The answer is minus 1 upon 4. So this is the way we will do these questions. Question number 6. This is I am doing with the chain rule. Question number 6. R of s is equal to under root 2s plus 1. This have you understood? Have you all understood? Anything do you want to ask? Nothing? Okay. I am doing another question. Question number 6. Question number 6. R of s is equal to under root 2s plus 1. Under root 2s plus 1. Okay. So that will be 2s plus 1 raised to power 1 over 2. 2s plus 1 raised to power 1 over 2. Under root will become 1 over 2. Now it cannot be opened. If you want to expand it, it will be expanded by binomial theorem. That is difficult task. And this is the power 1 over 2. So the terms will be unlimited. When the power is negative or fraction, rational or negative, so the expansion will be unlimited. So we will use the formula ax plus b whole raised to power n. That I wrote derivative of ax plus b whole raised to power n. It will become the derivative. The derivative of whole this one with respect to x. First of all, n will be written into ax plus b raised to power n minus 1. Then we multiplied with the derivative of ax plus b. Only what is inside its derivative. Here the whole derivative power n. Here n is shifted over there, multiplied with the ax plus b whole raised to power n minus 1 into, we will multiply with the derivative ax plus b, what is inside the bracket. This is called the chain rule. That formula will be used over there. That formula will be used over there. So R dash S
First of all, power will become over there 1/2 into 2s plus 1 raised to power 1/2 minus 1. One power is subtracted into the derivative of what is inside. Sorry, this is 2s. With respect to s, if the function is a function of s, we will write ds, not dx. X is not there. R is a function of s. So we will take the derivative with respect to s. What is inside its derivative? अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव, होल का नहीं. होल पावर नहीं लिखेंगे, एन का होल पावर. तो यहां हमने एन नहीं लिखा, सब जो इनसाइड थी पावर का तो हमने यहां ले लिया. पावर वाला मसला खत्म हो गया. अंदर वाली चीज है उसका डेरिवेटिव. ये हो गया 1/2 2s plus 1 raised to power 1/2 minus 1 will be minus 1/2. माइनस 1/2 बच जाएगा इनटू इसका डेरिवेटिव 2s का डेरिवेटिव 2 का 2 आ जाएगा कांस्टेंट, और s का डेरिवेटिव 1 आएगा. जैसे x का डेरिवेटिव 1 आता था, y का डेरिवेटिव 1 आता था, s का डेरिवेटिव क्या होगा 1. 2 into 1 तो 2 हो जाएगा. और 1 का डेरिवेटिव वो कांस्टेंट है, सेपरेट है, तो उसका 0 आ जाएगा. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 2 का 2s है. 2 कांस्टेंट s के साथ लगा हुआ है तो 2 एज इट इज लिखा जाएगा और s का डेरिवेटिव 1 होगा. जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का डेरिवेटिव 1 था, t का डेरिवेटिव 1 था. क्योंकि s का डेरिवेटिव 1 कैसे होगा, यहां मैं लिख देता हूं. डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू s, ये पावर जो है 1 पावर है इसकी, टू एस, सपोज 2s का मैं कर दूं. कांस्टेंट एज इट इज लिखा जाएगा. कांस्टेंट एज इट इज लिखा जाएगा. s का डेरिवेटिव इनटू पावर 1 है, 1 नीचे आ जाएगा और s की पावर क्या आ जाएगी, यहां पावर 1 थी उसमें से एक कम कर देंगे. ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू एस रेस टू पावर 0. और किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है. 1 इंटू 1 विल बी 1 और ये 2 आ जाएगा. तो s हो या x हो और विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, या x हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा. y है विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव 1 है. t है विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव 1 होता है. तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा. तो 2 इंटू 1 विल बी 2 और 1 सेपरेट है, कांस्टेंट है सिर्फ, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 2s प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1/2. 2 प्लस 0 विल बी 2. ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया. हमारे पास अब ये बच गया 2s प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1/2. और इसको चाहे तो नीचे ले जाएं पॉजिटिव करके और अंडर रूट में लिख दें. ये नेगेटिव पावर को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2s प्लस 1 रेज टू पावर 1/2. 2s प्लस 1 रेज टू पावर 1/2. और इसको अंडर रूट में भी लिखा जा सकता है. पावर 1/2 अंडर रूट में भी लिखी जा सकते हैं. यूं हो जाएगा 2s प्लस 1 1/√2s प्लस 1. ये आंसर आ गया. ये हमारे पास आंसर आ गया 1/, तो ये r डैश एस हमारे पास क्या आ गया 1/√2s प्लस 1. अब हमने इसमें मुख्तलिफ वैल्यू जो है उसने दी होंगी. जैसे r-0 r-1 r-1/2 दिया है. ये हम इसमें पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे. कर लेते हैं हम इसको भी.
r dash 0 r dash 1 r dash 1 over 2. जी r dash 0 r dash 1 r dash 1 over 2. अब इसमें हम पुट कर देंगे, हमारे पास r dash s क्या आया था, ये था हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2s प्लस 1, ये हमारे पास r डैश s आया था। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, r डैश 0 पहले पुट करेंगे, फर्स्ट पार्ट r डैश 0 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 विल बी 0, तो ये हो जाएगा 1 ओवर रूट 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 1, तो अंडर रूट 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, 1 ओवर अंडर रूट 1 विल बी 1, इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड, r डैश 1 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू 1, s की जगह 1, s की जगह 1 आ रहा है, 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 1 जा 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 3. In the same way, the third part, r dash 1 over 2, it will become 1 over under root 2 into 1 over 2, s की जगह 1 over 2 पुट कर दिया प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 over रूट 1 प्लस 1, 1 over रूट 2, ये तीन आंसर आ गए। पहले r डैश 0 पर 1 आया, r डैश 1 पर 1 ओवर रूट 3 आया, r डैश 1 ओवर 2 पर 1 ओवर रूट 2 आ गया। So these are the answers. Understood this one? इस सबको समझ में आ गया बेटा? जी सर। Okay. Now we'll do the 7th question. जल्दी जल्दी अब 7th और 8th 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है। We have to find the derivative only. वैल्यू नहीं पुट करनी। y is equal to 2x cube. Find dy upon dx. So dy upon dx क्या हो जाएगा इसमें? 2 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3 नीचे आया और एक पावर कम करके हमने इसको लिख दिया, इट विल बिकम 6x स्क्वायर। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, 6x स्क्वायर इज द आंसर। ये आपको स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, आगे लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, r is equal to s cube upon 2 प्लस 1, ये फ्रैक्शन में है,
लेकिन इसमें हमने u अपॉन v का फार्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन u s का नहीं है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ s ओनली, सो इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा 1/2 है ये, सो r डैश विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3s², ये 1/2 कांस्टेंट है, ये अगर ये फंक्शन होता है इसका तो फिर हम इसको u अपॉन v का फार्मूला लगता, u अपॉन v का फार्मूला तब लगता है जब दोनों u और v ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी s के फंक्शन हो। अगर सिर्फ ऊपर वाला है तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाला s का फंक्शन नहीं है तो वो कांस्टेंट है, तो एज इट इज लिखा जाएगा, यहां 1/2 कर दे या अपॉन 2 कर दें, आप उसको एज इट इज लिख दें, इसका सिर्फ डेरिवेटिव लिख दें और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास हो गया 3s² अपॉन 2, ये आंसर आ गया, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 3/2, सर 1 कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है तो 0 हो गया ना बेटा, कांस्टेंट है तभी तो 0 हो गया उसका डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आंसर आ 3/2 s² इज द आंसर। तो ये आज का हमारा काम कंप्लीट हो गया, टाइम खत्म होने वाला है, लेस देन 1 मिनट रह गया हमारा ये क्लास खत्म होने में। तो ये आज हमने डिफरेंशिएशन और लिमिट्स पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिमिट्स पढ़े, और हमने क्या उसके लिमिट्स पढ़े अलजेब्रिक फंक्शन के जिसमें x टेंड्स टू इंफिनिटी था, 2 किस्म के लिमिट हमने पढ़े, और हमने